everybody. Now today we are going to discuss the next part of our calculus, and that is continuity. So is there relation between the limit and continuity? So yes, definitely there is a relation between the limit and continuity. To solve the question based on continuity, to evaluate the continuity, and to identify whether the function is continuous or not, it is very important to know all the basic knowledge of limit. So already we had completed all our concept, all the values, all the examples and the formulas regarding with the limit. Today we are going to discuss about the continuity. So first of all, before solving the question based on the continuity, just within some time recall what is mean by the continuity. So first of all, continuity, it means whether the function is a continuous or whether the function is discontinuous. अगर स्मूथली आपका दिया हुआ फंक्शन मूव रहा स्मूथ, तो वो समय पे फंक्शन बन जाता है कंटिन्यूस. नाउ टू चेक the continuity of the function, it is very important to know about the left hand limit, right hand limit, limit at a point and limit tends to point. What I say again, just repeat it. Limit. Now there are the four different types of limit. The left hand limit, right hand limit, limit tends to point and limit at a point. And when we are talking about all this, so if there is any similarity between these four limits, it means the function is continuous. Now what are the particular patterns to write down the left hand limit and the right hand limit? Limit tends to point, limit at a point. So generally when we are writing this something, it means x tends to a. x किसके तरफ जा? तो x a के तरफ जा. अभी हमारा कंसेप्ट ये कि वेरिएबल जाता है कांस्टेंट के तरफ या कांस्टेंट आता है वेरिएबल के तरफ. तो एज वी ऑल नो दैट कि हमारे पास का वेरिएबल मूव होता है कहाँ पे? कांस्टेंट के तरफ. नाउ दिस एरो सिंपली इंडिकेट्स दैट टेंड्स टू जा रहा है. This only indicates that tends to जा रहा. ठीक है. अभी ये जाना कैसे? क्या लेफ्ट साइड जा रहा, क्या राइट साइड जा रहा, क्या एक पॉइंट पे खड़ा है? तो इसीलिए when we are on the number line exactly at the middle we are x is equal to a. Now when we are moving on the right side, it indicates by the positive symbolic form, and when we are on the left side, it indicates by the negative symbol. So left, right, plus, minus, and when we are in the mode of limit, x tends to a positive, it means it's a right hand limit. Limit x tends to a negative, it's a left hand limit. So generally these limits are denoting as left hand limit, right hand limit, or we are saying limit x tends to a. Simply a without any plus minus. ना प्लस है बेटा वहां पे ना माइनस है, सिर्फ दिखा रहा कि मैं जा रहा हूं. कैसे जा रहा हूं? लेफ्ट जा रहा हूं, राइट जा रहा हूं. तो सिर्फ जाना ये हो जाता है लिमिट टेंड टू पॉइंट. और जब दिया हुआ फंक्शन f ऑफ x के जगह f ऑफ a बन जाता है तो वो होता है एट अ पॉइंट. अगेन वंस रिवाइज ऑल दिस. दिस इज अ राइट हैंड लिमिट, right hand limit. This one is a left hand limit. Now third one, limit tends to point. So this is at a point limit. So this one is considering as a tends to point limit.
and this is the at a point limit. So all these are different types of limit, but we are talking about the continuity. So what exactly mean of this continuity? When out of these four limits, as per the given question, as per the given situation, as per the given condition, if any two given values, any two given limits are equal, it means the function is the continuous. So what exact types are there, or what exact possibilities are there? So number one, if left hand limit is equals to right hand limit. Second, left hand limit is equal to limit tends to point. Limit tends to point. Now third one, right hand limit is equal to also limit tends to point. Limit tends to point. Or next one, limit at a point is equal to limit tends to point. It means f of a is equal to again limit tends to point. अगर इसमें से गिवन के हिसाब से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन कैसे बन गया? कंटिन्यूअस बन गया. पर अगर what is this अगर मगर left hand limit is equal to right hand limit, so there are see आपके पास left hand limit है is equal to right hand limit बन रही, is equal to limit tends to point है, limit tends to point है, और यही टर्म is equal to जा रही limit at a point के लिए. और अगर ये पूरा का पूरा इक्वलिटी में है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा? इफ एनी फंक्शन सेटिस्फाइड ऑल दिस, इट मींस गिवन फंक्शन इज, ऐसे हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस. बट व्हाट हैपन इफ एनी ऑफ देम इज नॉट इक्वल? अगर ये चार इक्वलिटी में से अगर एक आधी भी इक्वलिटी नॉट इक्वल्स टू बने तो क्या? सो सी, आधा फंक्शन अगर इक्वलिटी दे रहा, आधा फंक्शन अगर इक्वल दे रहा, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, पर यहाँ पे भी बेटा आपके पास फिर से दो अलग अलग टाइप आ जाते. फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी जिसे आप मिटा सको, एंड सेकंड वन इज द इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ये दो टर्म याद रखो. कौन से? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड वन इज अ इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. अभी सवाल ये है कि हम लोग कैसे जाने, हमें कैसे पता होगा कि फंक्शन कौन सी डिसकंटिन्यूटी को लेके जा रहा है? तो अगर ये चार में से आधा फंक्शन कंटिन्यूअस और आधा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर है, तो आधे डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बना सको तो वो हो जाता है रिमूवेबल. इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है? देयर आर द डिफरेंट टाइप. सो कब हो जाता है ये? जब f of x does not exist. अभी ये एग्जिस्ट कब नहीं होगा? तो अपने अपने जगह पे अगर किसी ने डिनोमिनेटर 0 दे दिया, अगर किसी ने टर्म ही नॉट डिफाइन बोल दी, तो वो समय पे फंक्शन ही अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो वो कंटिन्यूटी के बारे में बताई गई. दूसरा, फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा, फंक्शन क्या हो रहा? एग्जिस्ट हो रहा, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, as well as limit tends to point is not equals to limit at a point. और अगर ऐसे कंडीशंस बना के हो गए, वो समय पे दिया हुआ फंक्शन कैरी करता है किसे? तो इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी.
और अभी जब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये चीज ध्यान में आती है बेटा कि रिमूवेबल इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के साथ साथ हमारे पास हर एक बार हेल्पर बन के अगर कोई काम करता है तो वो होता है लिमिट। यानी कंटिन्यूटी का सवाल कराने के लिए लिमिट का बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ये चीजें होने के बाद फिर कुछ बेसिक्स कंटिन्यूटी में एक्स्ट्रा ऐसे सिनॉप्सिस कुछ भी लिमिट एंड लिमिट के बेस पे ही आ जाती कंटिन्यूटी। फर्क सिर्फ इतना रहता जब हम लोग लिमिट के बारे में बोल रहे तो एट ए टाइम हमें एक ही फंक्शन को लेना, और जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमारे पास वेराइटी है। नाउ आप ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आते ये सिंबॉलिक फॉर्म को दिमाग में फिट करके रखो। अगर आपके पास इक्वल है इसका मतलब ये एट अ पॉइंट लिमिट है। अगर आपके पास नॉट इक्वल के साथ अगर दिया है इट मीन्स इट्स अ टेंड्स टू पॉइंट लिमिट है। ये छोटी छोटी चीजों को नहीं भूलना। लेस देन अगर के साथ जा रहा इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, और ये सभी लिमिट्स को लेके जाते समय इक्वालिटी अगर आ गई, लिमिट अगर दो इक्वल वैल्यूज दे रहा तो फंक्शन कैसे बन जाता है फिर? तो फंक्शन बन जाता है कंटिन्यूअस। दिस इज अबाउट द कंटिन्यूअस। नाउ व्हेन वी आर मूविंग अगेन वन स्टेप अहेड तो हमें और एक चीज ध्यान में आती है कि सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, logarithmic function, exponential function, rational function, then constant function, polynomial function, all these functions are continuous in its given domain. function कैसे रहते? continuous रहते। कहाँ पे? in its given domain. Now sometimes left hand limit, see अगर मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये सिर्फ लिमिट का सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसी के वजह से ये बन जाता है f ऑफ a माइनस h। और जब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a प्लस की बात करते हैं ये बन जाता है f ऑफ a प्लस h। और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स का ये पर्टिकुलर यूज हम लोग कंटिन्यूटी से ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी में करते हैं। ना ये भी तभी होता है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी में जब हम लोग वो क्वेश्चन को वो तरीके से पर्टिकुलरली या ऐसे लेफ्ट राइट तरीके से लेके जाने की सोचते हैं। अदरवाइज वी आर डायरेक्टली फाइंड द डेरिवेटिव्स, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट डेरिवेटिव पता है, हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां पे हमें यही यूज करना। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन व्हेन वी आर फाइंडिंग the differentiability of any function? And to find the differentiability of any function we are using the first principle of derivative. So what is this first principle of derivative? According to this, f dash of x which is nothing but the derivative of f of x, okay, and which is also nothing but the, if y is a function of f of x then derivative of f of x is f dash of x. It means first principle become dy by dx is equal to f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, and this result is known as first principle of derivative. So remember this one, formula for first principle.
यही फॉर्मूला जब डिफरेंशिएबिलिटी ढूंढने के लिए निकाला जाता है बेटा, तो क्या स्मॉल चेंजेस किए जाते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अभी मैंने 0 के ऊपर ही माइनस लिख लिया, इट मीन्स h के जगह पे हो जाता है आपका माइनस h, और f ऑफ x प्लस h के जगह पे हो जाता है f ऑफ x माइनस h। और जब आप प्लस की बात करते हो, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो जो आपका डैश ऑफ x का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला जैसे का वैसा। और अगर ये दोनों फॉर्मूले ने सेम वैल्यू आपको दे दी, इट मीन्स योर फंक्शन इज सेटिस्फाइंग द डिफरेंशिएबिलिटी, इट मीन्स द फंक्शन इज कैसे हुआ, डेरिवेबल। नाउ कीप इन द माइंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे रहेगा, कंटिन्यूअस, बट every continuous function need not be necessary that it is a differentiable। और यही कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। Now going to start some questions based on, that is, continuity and differentiability. So each and every question is important for us because continuity and differentiability itself carry 2 to 3 question, more than sometimes more than 3 question in the NDA examination. So let's start. Your first question on the screen is, consider the following in respect of the function, और हमें ढूंढना है कि दिए हुए टर्म में से which one is correct. So read the first question. f of x is equal to 2 plus x, 2 minus x। यहाँ पे देखिए बेटा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इट मीन्स इट्स अ राइट हैंड लिमिट, और जब लेस देन है, इट मीन्स इट्स अ लेफ्ट हैंड लिमिट। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, वेदर द लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, f of x does not exist। उसके बाद f of x is a differentiable at x is equal to 0 and continue। 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स देखे और हमें ये ढूंढना है क्या ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट वन। सबसे पहले लिमिट कहाँ पे लेके जाना, x टेंड्स टू 1, whether the function is exist or not। सो जब हम लोग लेस देन 0 की बात करें, तो लेस देन 0 में हमारे पास कौन आ जाएंगे, -1, -2, -3, ठीक है। और जब हम लोग ग्रेटर देन 0 की बात करें तो हमारे पास कौन आएगा, तो 1, 2, 3 सो ऑन। यहाँ पे आपको 1 के लिए जो लेफ्ट राइट लिमिट अवेलेबल है वो मिल ही नहीं रही, इट मीन्स फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। मूव टू द सेकंड, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, जैसे कि आपको बताया है कि डिफरेंशिएबिलिटी निकालना, या फिर अगर डायरेक्टली उसको निकाल पाते हो तो डायरेक्ट मोड पे जाके निकालो। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगी, इट मीन्स फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1 and 0 minus 1 is equal to minus 1। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ 2 plus x, again by using the same derivative of 2 0 x1। now left hand derivative has value -1, right hand derivative has value 1, left hand derivative is not equals to right hand derivative, it means function is not differentiable at x is equal to 0। देखते हैं थर्ड में हमें बोल रहा whether the function is continuous or not। फिर से कंटिन्यूटी ढूंढने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 माइनस के वक्त कौन सा लोगे बेटा, तो लेस देन, क्या है लेस देन में 2 माइनस x, x किसके तरफ जा रहा, तो 0 के तरफ,
सो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 2 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, sorry, 2 plus 0 is equal to 2. Both gives us the same value. It means left hand limit is equal to right hand limit. So function कैसे बन गया? Continuous बन गया. अभी बोल रहा which of the above statement is are correct. कौन सा statement correct हुआ? सिर्फ only 3. Now move to the next question. Question number 6. Read the question very carefully. So what is given? F of x is equal to cos of mod of x is continuous function because क्यों ये continuous है, इसका कारण मांग रहा है. तो सबसे पहले एक एक चीजों को समझो बेटा. f of x क्या दिया हुआ है? तो cos of mod of x है, और ये फंक्शन को बोल रहा कि गिवन फंक्शन इज कैसे है? तो कंटिन्यूअस है. नाउ लेट डिस्कस द कंटिन्यूटी कि क्यों कंटिन्यूअस है. सो सबसे पहला आया है cos x. cos x is a trigonometric function and trigonometric function is continuous in its domain. निपट गई बात. उसके अंदर जो आया है that is a mod of x, and as we all know that modulus function is also continuous in its domain. Or when the composition of two continuous function is there, so composition also continuous. It means cos of mod of x is a continuous function because क्या? Because the composition of continuous function is continuous. Now move to the next one. Question number 3. The value of b for which the function, किसकी वैल्यू निकालना है? To find the value of b for which the function is, कैसे बोल रहा? Continuous at every point in its domain. उसके पॉइंट डोमेन में वो कंटिन्यूस. अभी अपन डोमेन का तो देखिए बेटा वो भी जान लेते. 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1, 1 लेस देन x लेस देन 2. जिसको ये थोड़ा भी किंतु परंतु होगा लिमिट जानने में, वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. देखिए जब सिंपली लेस है इसका मतलब आप ओपन ब्रैकेट में, तो 0 से शुरुआत किए. लेस देन 2 है यानी 2 पे आके रुके. आप कौन से इंटरवल में सर्वाइव कर रहे हो? तो आप ओपन इंटरवल में सर्वाइव कर रहे हो. एंड व्हेन वी आर इन द ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 2, वो समय पे हम लोग सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हैं, और वो वैल्यू कौन सी बची अभी? 0, 1, 2. और हम लोग कौन से इंटरवल में? ओपन. तो ना 0 ले सकते ना 2 ले सकते. कौन सिर्फ बच गया बेचारा? तो 1 बचा. फंक्शन कैसा है? तो फंक्शन कंटिन्यूअस. और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वालिटी दे देगी किसके साथ? तो राइट हैंड लिमिट के साथ. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. चलो लेस देन 1 के लिए फंक्शन कैरी हो रहा 5x माइनस 4. 1 less than x, it also means x greater than 1. So यहाँ पे हुआ 4x square plus thrice bx. x किसके तरफ जा रहा बेटा? तो x 1 के तरफ जा रहा. It means accordingly हमारे वैल्यू बन जाएंगे 5 into 1 minus 4 is equal to 4 into 1 square plus thrice b into 1. ठीक है. 5 into 1 ये हुआ 5 minus 4 is equal to 4 plus thrice b. 1 minus 4 is equal to thrice b minus 3 is equal to thrice b. So value of b is equal to कितना? तो value of b is equal to -1, which is lies in our option number A. Now move to the next question. See, फिर फंक्शन कैसा है? तो फंक्शन कंटिन्यूअस. कहाँ पे कंटिन्यूअस है फंक्शन?
तो 0 से लेके तो इंफिनिटी तक। पर कैसे? 0 लेस देन, क्या लेस देन और इक्वल टू है? तो नहीं, 0 लेस देन इंफिनिटी। आप 0 कवर करोगे, यहाँ पे इंफिनिटी कवर करोगे। 0 से लेके तो इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर्स ले लो। अभी देखो यहाँ पे कौन से नंबर्स की लेफ्ट राइट लिमिट हमें मिल रही। फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है बोल रहा, यहाँ पे जहां पे हमारा इंटरवल ऐसे होगा 0 to इंफिनिटी, ठीक है। पर क्या 0 की लेफ्ट राइट दोनों लिमिट अवेलेबल है क्या? तो नहीं, इसीलिए शुरुआत करते हैं 1 से। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 नेगेटिव का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पॉजिटिव का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। विच फंक्शन मूव्स टू द लेस देन x स्क्वायर अपॉन a, which function moves to the greater than, so simply a, but extends to 1, इसका मतलब 1 square upon a is equal to a. It also means a square is equal to 1. Therefore, a is equal to 2 possibilities plus minus 1. अभी बोलना मैडम क्यों लिए प्लस माइनस? क्योंकि ऑप्शन को देखिए बेटा, +1 भी ऑप्शन में दिख रहा और -1 भी दिख रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। याद रखो कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितनी आई है? +। नेक्स्ट और किसकी लिमिट हमें मिल सकती है? कौन से पॉइंट में मिल सकती है? तो हमें मिल सकती है टेंड्स टू √3 के लिए। चलो, नाउ लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस। एक लेफ्ट हैंड है और एक कैसी है? राइट हैंड है। चलो और आगे, यहाँ पे आपके पास रहा a, यहाँ पे रहा ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस 4b अपॉन x स्क्वायर, बट x टेंड्स टू √2. √2 square is simply 2. Limit of constant it means a is equal to, वहां से 2 को बाहर बुला लीजिए, b स्क्वायर माइनस ट्वाइस b और अपॉन √2 स्क्वायर, यानी कितना बेटा? 2। क्या कंडीशन सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग? तो b स्क्वायर माइनस ट्वाइस b इज इक्वल टू a। पर a के कितने पॉसिबिलिटीज है? तो 2। कौन से? वो देखिए प्लस और माइनस। तो चलिए पहला लिख लेते, b स्क्वायर माइनस ट्वाइस b इज इक्वल टू +1। +1 ने जैसे ही अपनी साइड शिफ्ट करा ली तो b स्क्वायर माइनस ट्वाइस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पर ये जो रूट्स देगा ये रियल नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे दो रूट्स ही नहीं जिसका प्रोडक्ट -1 हो और जिसकी सम -2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के तरफ। तो b स्क्वायर माइनस ट्वाइस b इज इक्वल टू -1। अभी -1 ने अपनी साइड शिफ्ट करा दी, सो b स्क्वायर माइनस ट्वाइस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, दिस इज द डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ b minus 1 whole square. It means we are getting the b is equal to 1 और ये b is equal to 1 की वैल्यू कब आई? जब हम लोगों ने a is equal to क्या सब्स्टिट्यूट किए थे? -1. It means most appropriate answer is option number C.